unemployment topic. Okay. Okay. So whenever we talk about unemployment, the thing comes in a mind like who's willing to do the work, and who is in the search of job but is not getting the job according to his or whatever his rate of wages are being available in the market. Maybe you may get the job at less wages but you are not opting that job. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिल नहीं रही है. Sometimes those people are considered to be unemployed because when we are talking about the definition of unemployment, we used to say the people those are willing to do the job, those are ready to do the job, willing भी हैं, ready भी हैं, they are able to do the job. Able to do the job means to say it's not like कि their capabilities are not matching. Their capabilities are also matching with the same, but they are not ready to do the job. चाहते नहीं वो काम पे करना चाहते नहीं वो जॉब क्योंकि उनकी जो वेज रेट है वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं होती है. So that is considered to be unemployed person. So they said that whenever we talk about the unemployment, here comes in a mind, is it a total number of population which is to be considered as unemployed, or the total number of labor force out of the people is considered to be unemployed? So they said that the number of people unemployed upon the total number of labor force into 100. So whenever we need to find out the rate of unemployment, how we'll calculate the number of people those are unemployed, that will calculate from the population, and the total number of labor force. So here we are not talking about the total population. हम सिर्फ labor force का denominator ले रहे हैं, numerator में हम number of unemployment ले रहे हैं. Number of unemployed upon total number of labor force into 100. That is unemployment rate. कितने percent unemployed है? What is this number of labor force? Number of labor force means to say the number of people those are viable and able to do the job. Those are above the age of 50. We are excluding the people those are sick, those are not viable to do the job. हम उन लोगों को जो sick हैं, जो जॉब के लिए कैपेबल नहीं है, उन लोगों को टोटल लेबर फोर्स में से निकाल देते हैं. तो चिल्ड्रन एंड अबव द 65 बिकॉज दे मे बी सिक, इसमें से भी बिटवीन द एज भी अगर कोई लोग बीमार हैं, सिक हैं, नॉट एबल टू डू द जॉब है, तो उनको हम लेबर फोर्स में काउंट ही नहीं करते हैं. डन. तो वो लेबर फोर्स हो गई टोटल जो लोग हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं, कर सकते हैं और वो किसी भी रेट पर जॉब करने को तैयार है. एंड जिन लोगों को जॉब मिल रही है, जितने लोगों को नहीं मिल रही वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिनको मिल रही है वो एम्प्लॉयमेंट रेट हो जाएगी. डन. नाउ दे आफ्टरवर्ड दे सेड दैट the concept of unemployment refers to actually the labor force approach. जो हमने concept of unemployment है वो हम labor force approach की फॉर्म में अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो लेबर फोर्स अप्रोच की फॉर्म में काउंट किया जाता है, लेबर फोर्स अप्रोच की फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है. सो व्हाट डज इट मीन? इट मींस एम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड पर्सन पर ईयर. एक तो हम जब लेबर फोर्स अप्रोच को यूज कर रहे हैं कि आप लेबर फोर्स टोटल की अप्रोच को कंसीडर कर रहे हैं टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड लेबर कि हमारी टोटल नंबर ऑफ लेबर फोर्स कितनी है और उसमें से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेबर फोर्स इन द इकोनॉमी. दैट शुड बी exclude the below the 15 years of age, and it should exclude the age of 65 plus, and in between the age if the people is not able to do the job, some physical mental fitness is not there, he is not being considered as a labor force. पहली बात. दूसरी बात, they said that employment is measured in the terms of standard person year. ये जो लेबर फोर्स है वो किस में मेजर की जाती है? स्टैंडर्ड पर्सन ईयर, SYP बोलते हैं, SPY बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड पर्सन ईयर. स्टैंडर्ड पर्सन ईयर मीन्स टू से a person who is working for 8 hours total 273 days in the year.
8 घंटे 8 hours and 273 days in a year. If he is employed, he is getting a job, he is considered to be a standard person. ये इसको मेजर करने का तरीका है कि कितने लोग, कितनी आपकी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए तो आपको एम्प्लॉयड माना जाएगा. अगर आप इससे कम वर्किंग आवर्स या इससे कम डेज में जॉब करते हैं तो आप एम्प्लॉयड नहीं कहलाते, तो फिर आप अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंडर आएंगे. तो प्लीज कीप इन योर माइंड, वी आर टॉकिंग अबाउट द फुल एम्प्लॉयमेंट पीपल, दोज आर गेटिंग अ जॉब फॉर द 8 hours for the 273 days into year. So 273 days because we have excluding the Sundays and the holidays and so on. So we are calculating out the 365 days में से हमने 273 days को calculate किया. Done. So it is not a अंडर डिटरमिन्ड और अनएम्प्लॉयड. मतलब इसको अगर किसी को ये वाला ईयर का एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है. तो इतना अगर जॉब मिल रहा है तो वो एम्प्लॉयड कहलाएगा. गेटिंग? तो ये एक नंबर हो गया हमारे कैलकुलेट करने का. फर्दर दे सेड दैट व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग इट, हु इज कैलकुलेटिंग दैट डेटा? कौन कैलकुलेट करता है लेबर का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा? NSO. It is being calculated by NSO. Further, it is the MOSPI. On the behalf of this labor data, we are calculating the unemployment of a particular year in the particular country. Now they said that जब हम ये MOSPI एंड NSO क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशंस है. MOSPI डेटा स्टैटिस्टिकल कलेक्शन ऑफिस है जो डेटा को कलेक्ट करता है, बट दे डन अंडर द प्रोसेस ऑफ लेबर फोर्स. पीरियोडिकल लेबर फोर्स के अंडर वो डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज टू बी डन अंडर द प्लेसमेंट ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. इसके लिए डेटा सर्वे करना करेगा ना. इसके लिए डेटा कौन सा सर्वे करना पड़ रहा है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कैलकुलेट करते हो एंड इस लेबर फोर्स के डेटा के बेसिस पे, सर्वे के बेसिस पे, जबकि ये जो डेटा स्टार्ट किया था हमने 2017 में स्टार्ट किया था पहली बार MOSPI के अंडर आके लेबर फोर्स पीरियोडिकल सर्वे जो बनाए थे वो 2017 में स्टार्ट किया था. एंड दे कम अप टू एस्टिमेट द लेबर फोर्स इनटू द इकोनॉमी. अब ये पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे जो MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल के अंडर आती है, NSO डाटा कलेक्ट करता है. ये सर्वे के बेसिस पे डेटा कलेक्ट करते हैं. ये डेटा किस चीज का कलेक्ट करते हैं? What is the total labor force? What is the employment rate? What is the unemployment rate? What are the conditions of work? वो employment से related, labor से related सब तरह का डेटा कलेक्ट करते हैं. So they are coming under to calculate the data of total labor force. लिख लीजिए कौन कौन सा डेटा ये कलेक्ट करते हैं. The first data they estimated is total labor force participation rate. They calculate the data of labor force, workforce participation rate, LF, labor force participation rate, and workforce participation rate. Further, they may get started for the. अच्छा, चलिए अभी आप ये लिखिए दोनों का नाम क्या है. अभी मैं इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ कि what is LFR and WPR. So we are calculating the data of these two things under this survey by these organizations. Labor force participation rate या फिर workforce participation rate हमारा 3 month का डेटा पीरियोडिकल बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है. पीरियोडिकल सर्वे है ना, पीरियोडिक सर्वे, तो हर 3 महीने के बाद ये एस्टिमेट करता है टोटल लेबर फोर्स, क्योंकि 3 मंथ में पॉपुलेशन भी बढ़ने वाली है. फ्यू पीपल कम अप विद एन एज ऑफ 15, वो पॉपुलेशन में बढ़ जाएंगे, लेबर फोर्स में बढ़ जाएंगे, और उन्हीं में से कुछ लोग को जॉब मिल जाएगी और कुछ लोगों की जॉब छूट जाएगी. तो हर 3 महीने के बाद हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, टोटल लेबर फोर्स रेट, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो चेंज हो जाता है. सो दैट्स व्हाई इट इज डन ऑन द पीरियोडिक बेसिस विद 3 months gap. And LFPR means labor force participation rate and WPR means workforce participation rate. Workforce participation का मतलब क्या? Total number of people those are working for the work. So it is done by the indicator of 3 months, urban area into currently weekly status. अभी हम इसका थोड़ा सा डिस्कशन ऊपर करते हैं क्योंकि this is important to understand. Unemployment के टॉपिक में we don't have much more to discuss about. We just have how it is being calculated, who is calculating,
what are the measures to calculate the unemployment, as well as in the later on stage we will discuss about what the causes, impacts and the policies and programs. So ultimately topic is not much more important. Topic regarding the question concept is two basic things. एक तो इसके measures क्या होते हैं, इस मेजर के अंदर ये वाली जो चीज आती है, फिर कौन इसको डेटा कलेक्ट कर रहा है, किस चीज का कर रहा है, और इसके अंडर किन किन चीजों को मेजर किया जाता है. तो आई एम स्टार्टिंग विद द अपसाइड, हाउ वी आर टेकिंग द थिंग्स टू बी LFRY एंड WRP. Okay, so we are starting, as we said that these data for 3 months periodic basis has been calculated. अभी हम पहले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट says that percentage of person in the labor force who are working, seeking or available for work in the population. Write down, ये important definition है. Labor force participation rate is the percentage of person in labor force who are working or seeking, ढूंढ रहे हैं, those are working, seeking or available for work in the population. Available, seeking and available in the job out of the population. Population का वो percentage जो population में से काम करने के लिए तैयार है, रेडी है और काम करने के लिए सीख कर रहा है, उनको हम वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं. पूरी पार्टिसिपेशन रेट में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कौन सी लेबर फोर्स, कौन सी, इसमें मेल, फीमेल, अर्बन, रूरल, ऑल काइंड ऑफ पीपल कैन, which is above the age of 15. Now one important thing is that they said that whenever we are calculating labor force participation rate to measure the periodical labor survey, ये सर्वे हम करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे. ये जो डेटा कलेक्ट होगा ये इन दोनों चीजों का डेटा कलेक्ट करेगा. जब इस चीज का डेटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये है, इसके अंडर हम अर्बन एरिया के डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. सो वी विल डू इट अंडर द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. वी विल गो फॉर अ 3 months डेटा इन द अर्बन एरिया इन करंट वीकली स्टेटस बेसिस. इन दोनों के बेसिस पे ये डेटा कलेक्ट किया जाता है. एक तो अर्बन एरिया का डेटा कलेक्ट किया जाता है 3 months का, हमने पहले ही बता दिया, पीरियोडिक बेसिस पे. दूसरा ये है करंटली वीकली स्टेटस के बेसिस पे डेटा कलेक्ट किया जाता है. व्हाट इज दिस करंटली वीकली स्टेटस बेसिस, दैट वी विल डिस्कस बाद में जब हम मेजर्स की बात करेंगे. तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो अर्बन एरिया का डेटा कलेक्ट करता है और 3 months का पीरियोडिक बेसिस पे डेटा कलेक्ट करता है. और उसके मेजर करने का, देखो हम जब ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर अ सर्वे. अब इस सर्वे को हमने कहा क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो चेंज हो जाती है, लोगों की पार्टिसिपेशन चेंज होती है हर 3 महीने के बाद. जब आप लोगों से पूछने के लिए जाते हैं हर 3rd month के बाद कि हाउ मेनी ऑफ यू आर नाउ बीइंग द लेबर फोर्स, हाउ मेनी आर गेटिंग द जॉब, हाउ मेनी आर बीइंग लेफ्ट विद द जॉब, हम ये क्वेश्चन तो पूछने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं. तो हम उनसे कैसे पूछेंगे कि आप एम्प्लॉयड हैं कि नहीं है आप. इसलिए जब हम ये चीज का क्वेश्चन पूछते हैं ना, जब हम मेजर करते हैं, आई कैन टेक एन एग्जांपल लाइक, अगर मुझे आपसे हर 3 months के बाद मुझे आपका हेल्थ का सर्वे लेना हो, so I'll come to you and I'll ask you how much proteins and how much diet you have taken in the past week, और आपने क्या कुछ सप्लीमेंट्स लिए हैं हेल्थ को लेकर, है ना, या कोई आप कुछ और सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो I'll ask you about this month only, this week only. अगर मैं आपसे डेटा कलेक्ट करने आ रही हूँ कि आपने इस साल के अंदर कोई वैक्सीनेशन कराया है, तो I will come to the year
कि साल में 2 वैक्सीनेशन हो सकती है हार्डली, है ना, या 2 साल में एक बार वैक्सीनेशन हो सकती है. इफ आई कम टू यू टू आस्क ओनली हैव यू एवर गॉन विद एनी सर्जरी, तो वो रोज 2-2 महीने बाद तो नहीं हो रही है, साल के बाद भी नहीं हो सकती. हो सकता है कि विद इन द आज तक सिर्फ एक ही बार सर्जरी हुई हो, है ना. तो आर यू गेटिंग व्हाट इज द सिवियरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस. तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को भी मेजर करने के लिए अलग तरीके अपनाते हैं. एक हो सकता है हम मंथ बेसिस पे पूछे कि हाँ जी पिछले साल आप, पिछले महीने आप एग्रीकल्चर में थे, आज आप इंडस्ट्री में आ गए, जॉब बदल दी, सैलरी मिल रही है नहीं, आप 6 महीने से अनएम्प्लॉयड है. आप जब से लेबर फोर्स में पार्टिसिपेंट हुए अभी तक आप अनएम्प्लॉयड ही हैं. आफ्टर 15 यू बिकम द लेबर फोर्स, बट नाउ यू आर 23 और 22, स्टिल यू आर अनएम्प्लॉयड. सो ये डाटा अलग अलग हो गया ना. तो 3 महीने वाला डाटा तो नहीं हो सकता, हर 3 महीने बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं, हर बार अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू फाइंड आउट द डाटा ऑन द बिहाफ ऑफ 3 मेजर्स दैट विल डिस्कस इन लेटर ऑन स्टेज. तो जो अर्बन एरिया का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो वीकली स्टेटस के बेसिस पे करते हैं. आपको वीकली पूछा जाता है कि आप हफ्ते में एक भी दिन जॉब मिली, हफ्ते में एक भी दिन आपने काम किया क्या, तो दैट इज टू बी द वीकली बेसिस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मंथ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स. तो ये वीकली स्टेटस के बेसिस पे डाटा कलेक्ट किया जा रहा है. ठीक है जी. सेकेंड जो है हमारा वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, दैट वी कैन बेस्ड ऑन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसी के बेसिस पे डाटा कलेक्ट कर दिया जाता है. लेकिन जो पार्टिसिपेशन रेट है, पार्टिसिपेशन रेट होता है, लिख लीजिए WPR क्या है. Workforce participation rate is the percentage of employed person into the population. Percentage of employed population, percentage of employed people in population. मतलब ये एम्प्लॉयमेंट रेट आ गई एक तरह से. कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, वो सिर्फ लेबर की बात करें, कितने लोग अवेलेबल हैं, ये अवेलेबल में से वो लोग हैं जो एम्प्लॉयड हो गए, तो ये इसका पार्ट हो गया. ठीक है जी. नाउ सेकेंड मेथड टू कैलकुलेट दिस डेटा, वन मेथड वाज ऑन द बिहाफ ऑफ periodical basis and urban area. Second, we used to calculate on the basis of casual status of calculating the data, casual status of employment. Estimate the employment and unemployment data on the basis of casually, which is both into rural and urban area. तो पहला वाला हम सिर्फ कहाँ कर, एक तो वीकली बेसिस पे कर रहे थे और अर्बन एरिया पे कर रहे थे. दूसरा मेथड क्या है, कैजुअल बेसिस डेटा, and it is for the both the rural and urban. तो ये दूसरी तरह का डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं, एक मेथड जो हो गया हमारा कलेक्ट करने का ये हो गया, और सेकंड मेथड ऑफ डेटा कलेक्ट करने का हमारा ये हो गया. सो इट टेल्स अस हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड, हाउ मेनी आर अनएम्प्लॉयड अंडर दिस बेसिस. तो ये दोनों का डेटा कलेक्ट कर रहा है, एम्प्लॉयड लोगों का भी कैजुअल बेसिस पे और रूरल का भी, एरिया अर्बन एरिया का भी. ये सिर्फ अर्बन एरिया का करता है और वीकली स्टेटस के बेसिस पे करता है, ये यूजुअल स्टेटस के बेसिस पे करता है. तो दे आर द टू मेथड्स टू कलेक्ट द डेटा ऑफ पीरियोडिकल बेसिस. हम पीरियोडिकल डेटा जो कलेक्ट करते हैं वो दो बिहाफ पे करते हैं, कैजुअल एंड वीकली, फॉर द urban and rural both. Done. So these are the two basic things that we will discuss whenever you're talking about the periodical data collected by the labor force participation rate. इसके बाद किसका जी, हाँ जी, वो सब चीजों का ही होता है. मतलब कि अभी हम जब 3 मेथड्स बताएंगे ना, तो 3 हर चीज का डेटा आपसे पहले मैंने 3 मंथ्स में पूछा, फिर जब आपके पास साल का डेटा सर्वे हो तब भी तो आप आए ना, कंपोनेंट सर्वेयर तो बनेंगे ना आप. तो अगर आपसे एक दिन का डेटा पूछने आ रहे हैं तो क्योंकि आप लेबर फोर्स हो तो आपसे हर तरह का डेटा कलेक्ट किया जाएगा आपसे ही. अब देखो, अगर हमारे पास 100 लोग हैं इन टोटल, हमने पहले उनके डेली बेसिस पे डाटा कलेक्ट किया, फिर हमने उनसे वीकली बेसिस पे डाटा कलेक्ट किया, फिर हमने उनसे ईयरली बेसिस पे डाटा कलेक्ट किया. जब डेली बेसिस पे हुआ तो हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी कि ज्यादा, डेली बेसिस पे ज्यादा होगी कि कम, ज्यादा होगी, है ना. इट विल बी मोर
it will be comparatively less and it would be very much less. साल में आप कितने दिन जॉब, क्या आपको साल में एक बार भी जॉब नहीं मिली? हाँ, हफ्ते के लिए मिली थी, 2 महीने मिली, 6 महीने मिली, you were working ना, but in this आपको सिर्फ कहा कि क्या एक दिन में आपको 8 घंटे काम मिला? नहीं मिला, तो you are unemployed. वीकली बेसिस पे, हफ्ते के बेसिस पे पूछा, पूरे हफ्ते में एक दिन जॉब मिली, एक दिन दिहाड़ी लगी, तो इट मीन्स यू आर एम्प्लॉयड. इफ यू आर नॉट गेटिंग इवन फॉर 1 डे, यू आर बिकम वीकली अनएम्प्लॉयड. अगर साल में नहीं मिली तो फिर साल के अंदर ही तुम अनएम्प्लॉयड हो. तो ये सर्वेयर तो वही है ना, लोग तो वही है, लेकिन द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ द सर्वे. क्या, कौन से बेसिस पे आप सर्वे कलेक्ट कर रहे हो? गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज द वे. आफ्टर दैट अब थोड़ा सा इजी टॉपिक है, थोड़े से टाइप्स आ जाएंगे, उसके बाद मेजर्स करते हैं. मेजर्स में वो वाली बात थोड़ी डीप डाउन हम डिस्कस करें. So we are talking about the types of unemployment. That is to be very much important in this question, क्योंकि वो घुमा फिरा के आता है आपका. The first one is open unemployment. When you do not get any job in any year, in any month, in any day, आपको जॉब मिल ही नहीं रही है, you are openly considered to be unemployed. आपको openly unemployed consider कर लिया जाता है, because you are not getting job even for a day, not for a month, not for a year. So considered to be a open unemployed. आपको बेरोजगार घोषित कर दिया जाता है, तो you are being open unemployed. Further we can say the second one considered to be disguised. Disguised unemployment means छुपे हुए. It is basically into the agriculture sector. And the most important thing when we talk about under the agriculture sector, they said that how to measure you are disguised unemployed. They said that simple formula is, ये आपके क्वेश्चन में भी आया हुआ है, when the marginal productivity of labor is 0, he is considered to be unemployed. जब किसी वर्कर की marginal productivity 0 होती है तो उसको हम disguised unemployment कहते हैं. Let's come to the core economics. Marginal productivity. हमने कहा marginal stands for, इसको divide करते हैं, marginal productivity of labor. Marginal means an extra. Productivity means output of labor. एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से आउटपुट में कितना चेंज आता है, that is called marginal productivity of labor. Those are known to economics, they can easily understand, but those are new to economics. How many of you haven't gone through with anywhere a marginal productivity topic? किन्होंने कभी तक नहीं किया marginal productivity? Okay, 2-3 people are there. Oh. So we can go for a bit of things because many of you know about it, but still we'll go for it. Marginal productivity होता है कि सपोज हमने कोई भी फैक्टर था, हमारे पास एक लेबर, हमारे पास एक लैंड थी, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हमने लेबर लगाया, पहले हमने 1 लेबर लगाया, फिर 2 लेबर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8 सो ऑन. जब हमने पहला लेबर लगाया तो हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होगी? एक्स्ट्रा लेबर लगाने से प्रोडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है. तो वी सेड दैट बिकॉज ऑफ अप्लाइंग अ न्यू लेबर माय प्रोडक्टिविटी इज increasing. Earlier I was producing like 10, then after I increased to 15, then I increased to 22, then increased to 26, then increased to 28, then increased to 29, that increased to, there's a 1 difference, then it comes to 29, then I'm applying 1 more labor, it is 28. Okay, I'm taking out the random values. मगर ये क्या बताता है कि जैसे एक एक्स्ट्रा लेबर लगाया, एक्स्ट्रा, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हुई, पहले वाले की नहीं पता, इन दो इसको माइनस करो तो क्या आया, एक लेबर
एक्स्ट्रा लगा, प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, 15 माइनस 10 इज 5। इसका मतलब जो ये एक्स्ट्रा लेबर लगाया है उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, पहला वाला कितना प्रोड्यूस कर रहा था 10, दूसरा वाला आया तो टोटल कितना हुआ 15। तो मतलब इसमें जो 5 कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, दूसरे वाले का। थर्ड का कंट्रीब्यूशन कितना है, 22 माइनस 15 इज 7 इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड वर्कर। फोर्थ लगाया तो इट्स 6 4, फिफ्थ लगाया तो 6 लगाया तो 7th लगाया तो 0 माइनस। दिस इज कॉल्ड योर मार्जिनल। टोटल में तो डिफरेंस आ रहा है, ऑब्वियसली जब भी आप नया लेबर लगाओगे वो कुछ तो प्रोडक्शन करेगा ही, लेकिन टोटल में बढ़ रहा है, मार्जिनलाइज्ड नहीं बढ़ रहा, उसकी अपनी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है। अब इसमें कौन सा लेबर ऐसा है जिसको अगर मैं हटा दूं तो मेरी प्रोडक्टिविटी में फर्क नहीं पड़ने वाला। Shall I remove this 7 number of labor? Because अगर इसको हटा भी दिया तब भी प्रोडक्शन 29 का ही होना है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी 0 थी और इसको तो बिल्कुल ही नहीं लगाना क्योंकि ये खुद भी नहीं कर रहा काम और किसी और को भी नहीं करने दे रहा, तो इसको तो वैसे ही क्लास में से निकाल दो, because he is not doing himself and he is keeping other thing to be disturbed. So ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को नेगेटिव लेके जा रहा है, तो 29 से 28 पे लेके आ रहा है, तो इसको तो वैसे ही निकाल देना है। लेकिन ये लेबर जो है इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, इस लेबर को हमें हटाना है। इसका मतलब ये लेबर कौन है, डिस्गाइज, जो दिखाने के लिए तो देखो लगी हुई है मगर वो काम नहीं कर रही है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा होती है। रीजन, इंडस्ट्री में भी हो सकता है ऐसे, तो क्यों होता है एग्रीकल्चर में ही, बताइए, सोचिए, why it happens into the agriculture sector only? बहुत इजी है। अगर कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर में किसी को जॉब नहीं मिलती तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आके फिट होगा, तो उससे एग्रीकल्चर लैंड पर बर्डन पड़ेगा। आपने हमारे सारे इकोनॉमिस्ट की थ्योरीज को रिवर्सिबल कर दिया। हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की जितनी भी थ्योरीज हैं वो ये कहती हैं कि whenever there is disguised unemployment, we should keep all the excess labor from the agriculture sector and put it into the industrial sector. यहाँ तो आप छुपे हुए बेरोजगार हो, सारा परिवार खेत में काम कर रहा है, आप भी कर रहे हो बट आप कर कुछ नहीं रहे हो, बट आप दिखाने के लिए कि मैं जॉब कर रहा हूँ, घर में काम कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ से उठा के मैं इंडस्ट्री में डाल दूंगी तो विल डू बेटर, बिकॉज हियर यू आर प्रोड्यूसिंग नथिंग। जब अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो जो लेबर है वो एग्रीकल्चर में आएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं होगा, जितना का एग्रीकल्चर डेवलप है उतना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट है ना, चाहे और ना भी हो। इंडस्ट्री में जॉब ना हो, why people from agriculture sector is moving to urban areas? Have you ever seen the urban people close down their houses and moving to the village area to get the job in the agriculture sector? Never. बट टॉपिक भी तो अनएम्प्लॉयमेंट है ना। हाँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो अर्बन एरिया में भी है, अभी भी है, रियल लाइफ में भी है। अगर कोई किसी को नई इंडस्ट्रीज में कोई नहीं मिल रही जॉब तो वो वापस से एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आएंगे। वापस से वो गया भी वहीं से था। अर्बन एरिया का कोई भी पर्सन रूरल एरिया में जाके जॉब नहीं करेगा, इंडस्ट्री को छोड़ के। जो रूरल से अर्बन में गया था वहां नहीं मिली, फिर वापस आ जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट? सो ये हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की सारी थ्योरीज यही बोलती हैं कि whenever there is a disguised unemployment in agriculture sector, we should keep all the excess labor from the agriculture sector and put it into the industry. क्योंकि यहाँ पर वो disguised हैं, वहां पर वो disguised नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? नहीं तो आपसे पूछ रहे थे कि यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 क्यों आती, बाकी सेक्टर्स में क्यों नहीं आती? इंडस्ट्री में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ 0 लेबर क्यों नहीं आती? हाँ जी, come on. Division of labor. This is the only reason. Division of labor का मतलब काम को
डिवाइड किया जा सकता है। इफ दिस इज द एग्री लैंड, ये हमारा जो रूम है ये एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे यहाँ पर 8 लोग काम करने वाले हैं, 7 थे, चलो 7 लोग काम करते, 7th को भी हटा देते, 6 लोग काम करने वाले, 7 लगे हुए हैं, 7th वाला डिस्गाइज्ड है। इज इट पॉसिबल? आप खेत को डिग कीजिए, आप पीछे से सीड डालना शुरू करो, आप पानी डालना शुरू करो, आप फर्टिलाइजर डालो, आप थोड़ा सा हर्बिसाइड्स डालो, आप खेत की कटिंग करनी शुरू कर दो, नहीं होगा ना, एक ही टाइम में सारा कुछ नहीं हो सकता। ये हमारी एक इंडस्ट्री है, हमने इसके 4-6 कैबिन बना दिए, आपको सिर्फ कटिंग करना आता है ड्रेस की, आप सिर्फ कटिंग करो, आपको सिर्फ स्टिच करना आता है, आप सिर्फ स्टिच करो, आप सिर्फ बटन लगाओ, आप सिर्फ पैकिंग करो, आप सिर्फ फोन पे बैठ के डीलिंग करो, ऑर्डर्स लो और आप यहां से पैकिंग करके सामान बाहर निकाल दो। क्या इसी रूम में सारा कुछ हो सकता है? We can do the division of labor at a same place. इंडस्ट्री में डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल है, एग्रीकल्चर में डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल ही नहीं है। एक व्यक्ति का काम जब खत्म हो जाएगा तो हमें वी नीड अ gestation टाइम पीरियड टू कम अप विद द फील्ड, देन वी विल कट डाउन, देन वी विल क्रॉप द, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसको मार्केट में भेजेंगे। तो वो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो एग्रीकल्चर में पॉसिबल नहीं होता। इंडस्ट्री में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए नहीं आती क्योंकि अगर एक नया व्यक्ति आया भी है, उससे पूछा जाएगा आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, आप क्या कर सकते हैं, वो कहेगा मेरे को कटिंग आती, चलो जी कटिंग के सेक्शन में बैठो। जब आप आए हो तो कटिंग तो करोगे ही ना, फिर आप कटिंग का ही काम दिया जाएगा आपको और एक लिमिटेड वर्क दिया जाएगा, टारगेट दिया जाएगा, शाम तक ये 4 कटिंग करके रखनी है, शाम तक ये 10 पैकिंग करनी है। तो डिवीजन ऑफ लेबर इज पॉसिबल इन इंडस्ट्री बट नॉट पॉसिबल इन टू एग्रीकल्चर सेक्टर। दैट्स द रीजन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कम्स टू जीरो very early into the agriculture sector, and that is the reason that leads to disguised unemployment in agriculture sector but not into the industry sector. इंडस्ट्री में कभी भी छुपी हुई बेरोजगारी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि 5 लोग लगाए हुए हैं, 4 ही काम कर रहे हैं, 5वां काम नहीं कर रहा, उसको कभी जॉब मिलेगी नहीं। Now moving towards a bit of different thing, but अभी आपको पूछना चाहिए था, जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है दे मे नॉट एबल टू, और या तो उनको आंसर पता है या उन लोगों का उस पर्सपेक्टिव में उन्होंने कभी सोचा नहीं, लेकिन जिन्होंने आज पहली बार ये टॉपिक समझा उनके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए था, जब आप सैलरी लेते हैं तो आप किसके बेसिस पे लेते हैं? नहीं, एवरेज बेसिस का मतलब 10 लोगों ने मिलकर काम किया, जितना आउटपुट आया वो 10 में बांट दो। आपने ज्यादा वो बीज बोए, आपने कम बीज बोए, इट्स हार्डली मैटर्स, अल्टीमेटली व्हाटएवर द टोटल आउटपुट इज देयर दैट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू ऑल द पीपल इज इक्वल बेसिस। अभी देखिए जरा, आपकी प्रोडक्शन को तो मापा जा रहा है मार्जिनल के बेसिस पे, आपकी इनकम दी जा रही है एवरेज बेसिस पे। आप 10 लोगों ने मिलकर काम किया, टोटल आउटपुट हमारा हुआ 29 का, चलो लेट इट 7 पीपल ओनली, 7 लोगों ने मिलकर काम किया, आउटपुट कितना हुआ 29 का, ठीक है। ये 29 10 रुपए के हिसाब से बचे, 29 290 रुपए इनकम आई, कितने लोग थे? चलो 7 थे, डिवाइड कर दो जितना भी आएगा, व्हाट इज आंसर? 30 नहीं, अच्छा 40 समथिंग, लेट्स से 40 ओनली, लेट्स से 40 ओनली। तो पैसे कितने के हिसाब से मिल रहे हैं? सबको कितने मिलेंगे? सबको कितने मिलेंगे? 40 रुपीज। आर यू गेटिंग गर्ल्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? हमने कहा आपका टोटल आउटपुट कितना है? 29 यूनिट्स का, प्रोडक्शन इज 29 यूनिट्स। अगर वो 10 रुपए के हिसाब से बिकता है तो 290 रुपए टोटल इनकम जनरेट हुई हमारी 29 कमोडिटीज बेच के। वो 290 रुपीज हमारे कितने लोगों में बढ़ गए? 7 लोगों में बढ़ गए, क्योंकि 7 लोगों ने मिलकर काम किया था। तो आपको एवरेज सैलरी कितनी मिली? 40 रुपीज। ये बेचारा जिसने सबसे पहले 10 यूनिट्स का आउटपुट किया था, इसको भी 40 रुपीज मिल रहे हैं, जिसने 2 रुपए प्रोडक्शन किया इसको भी 40 रुपीज मिल रहे हैं, जिसने कुछ नहीं किया 1 किया उसको भी 40 मिल रहे हैं। Are you getting the difference? So this is the difference in agriculture sector. Whenever you get the returns, that is based on average. Yeah. So according to the season when the job is being done, that is to be a seasonal unemployment. Further we have seasonal के बाद हम लेते हैं technical, technological unemployment. Due to the change in technologies, टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग
स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं इसको। टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अगर इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, स्ट्रक्चरल चेंज आ गया, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, एज वी कैन से, वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ few people, those who are working into the off role in banks, they were off role, you know, है ना, off role में जो बैंकिंग में जॉब कर रहे थे, they people were on the behalf of tele work under the ledgers, वो लेजर पे काम करते थे, जो डेली की एंट्री आती थी वो लेजर पे चढ़ाते थे, लेजर इज अ रजिस्टर, रजिस्टर पे चढ़ाते थे। अभी कंप्यूटराइजेशन हो गया, ऑल कंप्यूटर चेंजिंग आ गए, अब आपको वो सारा जो लेजर वर्क था वो आपको कंप्यूटराइज्ड करना है, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो यू आर सपोज टू गो बाय, आपको बाय बाय कर देंगे, आपको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ेगा क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज आ गया। ठीक है, एनी अदर एग्जाम्पल फ्रॉम योर साइड? जो पहले लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की जैसी इंडस्ट्री होती है वो हथकरघा से चला रहे थे, आजकल वो only one button can be working on the same thing. So this is the seasonal technical or structural unemployment. Further one is a frictional unemployment. Frictional unemployment is इसको temporary भी बोलते हैं, temporary unemployment. It is just in the meanwhile when you are shifting from one job to another job, कुछ frictions of moment, frictions of months के लिए आप unemployed होते हो, उसके बाद जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है फिर से आप unemployment पे आ जाते हो। मान लो आपने कोई अपना प्लेस चेंज किया, आप रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ रहे हैं, तो जब रूरल से अर्बन में आए तो आपको एकदम से आके नई जॉब नहीं मिलेगी, यू विल व्हाटएवर यू वर डूइंग इन द प्रीवियस प्लेस, यू हैव टू कम अप एंड यू हैव टू सर्च फॉर अ न्यू जॉब। उस मीन टाइम पीरियड में अनएम्प्लॉयड हो आप, तभी हम जब अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम 3 महीने वेले थे, उसके बाद फिर हो गए, है ना, हम फिर को जॉब मिल गया, तो वो हम कह सकते हैं कि आप मंथली बेसिस पे तो अनएम्प्लॉयड हो लेकिन ईयरली बेसिस पे आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो, वीकली बेसिस पे तो आप अनएम्प्लॉयड हो लेकिन आप मंथली बेसिस पे अनएम्प्लॉयड नहीं, इसलिए जो डेटा है वो हर 3 महीने के बाद रिवाइज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज टॉकिंग अबाउट द टेम्पररीली अनएम्प्लॉयड, लेटर ऑन यू विल गेट द जॉब एंड यू विल कम अप टू द एम्प्लॉयमेंट रेट। फर्दर वी हैव एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट दैट वी नो, एजुकेशनल जो पढ़े लिखे लोग हैं, vulnerable unemployment. Vulnerable unemployment is basically जो लोग एम्प्लॉयड तो होते हैं लेकिन उनका कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना उनके कोई वर्किंग प्रोसीजर है, ना कोई इनका रूल ऑफ डॉक्यूमेंट है, जो किसी भी नियम कानून के आधार पर एक दूसरे एम्प्लॉयमेंट के साथ नहीं रिलेट करते, वो सिंपली आज काम कर रहे हैं, कभी कल निकाल देंगे उनको, तो दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ फॉर्मल, दे आर बेसिकली इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जिनके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है लीव का, कोई रूल्स नहीं है सैलरी एक्सटेंशन का, दैट इज टू बी बेसिस ऑन द रैंडम बेसिस, सो दैट इज कॉल्ड योर vulnerability on the employer, उसके ऊपर ही चल रहा है वो, है ना। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज सेम टू बी somewhere somehow this one, बट इसको हम एक चीज और कह देते हैं इंडस्ट्रियल में। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कभी कभी जो है स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, लैक ऑफ या पॉसिटी ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, इनकी वजह से भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्निक चेंज होने की वजह से इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट आता है, कि आपके पास, कंपनी के पास इतना पैसा ही नहीं कि वो रॉ मटेरियल बाय कर सकती है, तो वो होल्ड पे रख देती है कि 2 महीने के लिए अभी आप
चाहो तो छोड़ के चले जाओ, नहीं तो हम आपको रिजाइन दे देंगे, हम आपका रिजिग्नेशन वो कर देंगे, रिटेंचमेंट कर देंगे. सो बेटर टू कीप इट होल्ड, वंस वी विल हैव द फाइनेंसेस विल कीप यू बैक. तो वो कभी कभी जो स्ट्राइक्स होते हैं, लॉकआउट्स होते हैं, वो उसकी वजह से भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है. Seasonal, vulnerable, cyclical. Last one is a cyclical. Cyclical unemployment is just because of economic situations. अगर पूरी इकोनॉमी में ही रिसेशन की वेव आ रही है तो सारे सेक्टर्स में से अनएम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो जाएगा. अगर इकोनॉमी में भी डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई तो उसकी वजह से होगा, और अगर बूम है तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा. तो साइक्लिकल वेव्स की वजह से, बिजनेस ट्रेड साइकिल्स की वजह से जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, दैट इज अ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. सो दीज आर द टाइप्स बेसिकली, जिसमें से मेन तो ये वाला डिस्कस किया जाता है, फ्रिक्शनल किया जाता है, और एक था नहीं इंडस्ट्रियल भी नहीं, वेनरेबल, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल कहाँ गया? टेक्नोलॉजिकल. these are the basic important ones which we need to discuss, जिसमें से सबसे सिर्फ एक का ही हमारे पास फॉर्मूला है मेजर करने का, बाकी किसी का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है मेजर करने का, वो हम एज अ रैंडम बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते होते हैं. ठीक है जी. that's the types. then we talk about the measures on unemployment. मापना कैसे है अनएम्प्लॉयमेंट को. मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. 3 मेजर्स हैं, हमने पहले 2 डिस्कस कर लिए हैं, फिर से दोबारा से हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं. एक होता है हमारा यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस. यूजुअल यूपीएसएस बोलते हैं इसको, यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस. इसके बिहाफ पर अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर किया जाता है. यूजुअल अनएम्प्लॉयमेंट, इट्स बेस्ड ऑन हु रिमेन्स अनएम्प्लॉयमेंट फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर. इसको फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको और इसको. तो पहला हो गया हमारा यूजुअल प्रिंसिपल या स्टेटस कह लीजिए. यूजुअल स्टेटस के बेसिस पे, जिसका मतलब ये किसके बेस्ड पे होता है? A person who remains unemployment for the whole year, for 1 year, for the whole year of major part of year, 1 year के अंदर अंदर मेजर पार्ट लिख लो या मंथ्स लिख लो, he remains unemployed, है ना? तो he is considered to be a usual status unemployed, usual principal unemployed. कि वो जब एक इंसान पूरे साल भर अनएम्प्लॉयड रहेगा तो उसको हम यूजुअल प्रिंसिपल के बेसिस पे अनएम्प्लॉयड कंसीडर कर लेते हैं. तो देन व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग अ डेटा ऑफ पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे, तो हम जब वर्कर से पूछते हैं सर्वे करने के लिए कि आप पिछले साल में, जब हम सर्वे करें उससे पिछले साल, उससे पिछला साल हो जाएगा ना, उस दिन से पिछला साल, उससे पिछले साल में क्या आप पूरा साल या मेजर मंथ्स ऑफ द ईयर में आप अनएम्प्लॉयड रहे हैं, तो मैक्सिमम मंथ का ईयर का जो पार्ट है अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो वो फिर प्रिंसिपल स्टेटस का अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है. तो वो मतलब कि बड़ी मेजर स्टेट ऑफ इकोनॉमी की है कि आपका आपके स्टेट का, आपकी इकोनॉमी का एक बंदा पूरे साल से ही बेरोजगार है. साल से बेरोजगार को कितने होना चाहिए? कम से कम 273 डेज. अगर 273 डेज के बीच में है तो फिर वो अनएम्प्लॉयड नहीं है. लेकिन अगर मेजर पार्ट 273 से भी आधा रह गया तो फिर देन यू आर सपोज्ड टू बी अनएम्प्लॉयड. तो 273 डेज से ऊपर होना ही चाहिए, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आएगा. उसके नीचे आ गया तो फिर वो प्राइमरी अनएम्प्लॉयड आ जाएगा. सेकंड इज टू बी अ पार्ट ऑफ योर लोएस्ट एस्टिमेट ऑफ अनएम्प्लॉयड द सब्सिडरी रोल लास्टिंग फॉर द 30 डेज ऑफ द कंसिडरेशन. जो हमारा सब्सिडरी है based on the 30 days,
ऑफ द सर्वे। जब आपसे सर्वे लिया उसके पिछले 1 महीने तक आपको पूछा जाएगा कि क्या आप अनएम्प्लॉयमेंट रहे हैं, तो आपको पिछले महीने से आप बेरोजगार हैं। इसमें हमारी जो बेरोजगारी है कौन कौन सी आती है? ये फ्रिक्शनल हो सकती है, इंडस्ट्रियल हो सकती है, टेक्निकल हो सकती है ना, कुछ इस तरह की, या आप जब शिफ्ट कर रहे थे, है ना, वो वाली हो सकती है जिसमें आपके पास अभी टाइम है, यू मे कम अप इन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, बट अभी के लिए आप बेरोजगार हो, तो वो वाला 30 डेज का स्टेटस इसमें कंसीडर किया जाता है। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, इट गिव्स अस द लोएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पूरे साल तो कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, तो वो वाला जो स्टेटस होता है वो क्या दिखाता है? सबसे कम बेरोजगारी दिखाता है इंडिया की, ये वाला स्टेटस, है ना। इट शो द लोएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पूरा साल तो कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कम से कम आधे दिन तो उसको जॉब मिलेगी, तो दैट रिप्रेजेंट्स अ लोएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। सेकंड इज योर, ये पहला वाला था। सेकंड अभी हमने किया करंटली वीकली स्टेटस, है ना। अब महीने से हम कहां पे आ गए? CWS पे। वीकली स्टेटस क्या कहता है? इट मींस अनएम्प्लॉयमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ 1 वीक, विद रिस्पेक्ट टू 1 वीक, 1 मंथ के लिए। If you're unemployed with respect to 1 week, or it may not able to get the work for an hour during a periodic survey, it is said to be employed for the week even after employment for a day during the month. वीक, पिछले 1 हफ्ते में जब आपका सर्वे पीरियड चल रहा था, आज सर्वे करने गए तो इस हफ्ते में अगर आप पूरा वीक एम्प्लॉयड नहीं हुए तो आप अनएम्प्लॉयड हो। लेकिन अगर इसमें से आप 1 डे भी एम्प्लॉय हो गए तो फिर आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो। मतलब हफ्ते की जो कंडीशन है ना मिनिमम, जैसे साल की मिनिमम कंडीशन कितनी है? 273 डेज, ऐसे हफ्ते की मिनिमम कंडीशन क्या है? 1 डे। अगर 1 डे भी जॉब मिल गई तो फिर आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो, फिर एम्प्लॉयड हो जाओगे। तो इफ यू विल सेट टू बी एम्प्लॉयड इफ फॉर द वीक even he is employed only for a day, अगर वो 1 दिन, I repeat, you set to be employed for the week even if he is employed only for a day। अगर 1 दिन के लिए भी जॉब मिलती है तो आप एम्प्लॉयड कहलाओगे, अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाओगे। इट रिप्रेजेंट्स हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली जब आप हफ्ते का मेजर कर रहे हो तो आप जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई रेट पे अनएम्प्लॉयमेंट आपकी नजर में आ रही है। थर्ड वन इज करंट डेली स्टेटस। डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपसे पूछा जाएगा द एक्टिव स्टेटस ऑफ अ पर्सन फॉर ईच डे of preceding 7 days, for each day for preceding 7 days। इसमें अब आपसे रेफरेंस पीरियड इज अ डे, इसमें रेफरेंस पीरियड क्या है आपका? डे, 1 दिन का आपका रेफरेंस पीरियड होगा। उसमें काम किसके बेसिस पे मापा जाएगा? घंटों के हिसाब से। क्या आपको 8 घंटे काम मिला तो एम्प्लॉयड हो, अगर कम मिला तो आप अंडर एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड नहीं हो। अनएम्प्लॉयड का मतलब है काम मिला ही नहीं, अंडर एम्प्लॉयड का मतलब है जितने घंटे मिलना चाहिए था उससे कम घंटे मिला, तो आप एम्प्लॉयड भी नहीं हुए, आप अनएम्प्लॉयड भी नहीं हुए, आप क्या हो गए? अंडर एम्प्लॉयड हो गए। सो if he did not work for a day or for some day during the survey, he is considered to be unemployed. It is to the work for 4 hours or more a day, he is considered to be employed for a whole day। अगर उसको, अब हमने कहा ना 1 दिन की बात कर रहे हैं, for each, sorry I left the day, for each day for preceding 7 days and reference period is a day, so 4 hours का टाइम पीरियड दिया है। अगर इससे प्लस आवर्स आप काम कर रहे हो, यू आर एम्प्लॉयड।
अगर आप इससे कम आवर्स काम कर रहे हो, यू आर अनएम्प्लॉयड। सो रेफरेंस पीरियड तो दिन का है, लेकिन उसमें घंटे का काम कितना है, 4 घंटे का। तो मिनिमम 4 आवर्स का अगर आपको काम मिल रहा है तो आप एम्प्लॉयड होते हो। अगर 4 आवर्स से कम का काम मिलेगा तो आप अनएम्प्लॉयड कंसिडर किए जाते हो। सो दैट इज टू बी द पार्ट, बिकॉज वैसे तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। ये 8 घंटे का काम कहा ना हमने उसमें SPY में, तो कि हमें कम से कम 8 घंटे का काम मिलना चाहिए, लेकिन दे सेड दैट फिर भी ये एम्प्लॉयड तो है ना फॉर अ डे बेसिस पे, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट आ जाती है समवेयर समहाउ, कि आपको पूरे घंटे काम ना मिला, आधा घंटा काम कम काम मिल गया, तो आप अंडर एम्प्लॉयड हो। सो दीज आर द 3 मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, की अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे किया जाता है। अब इन तीनों के बेसिस पे हमारा पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे किया जाता है। पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे किया जाएगा। अब इसी में ही वही लेबर फोर्स को पहले उसके करंट स्टेटस के बारे में पूछा जाएगा। एक दिन, हफ्ते में कितने दिन काम मिल गया, आज का दिन काम मिला था, कितने घंटे मिला था, 8 घंटे में 7 घंटे मिल गया, आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो। फिर आपसे पूछेगा क्या इस वीक में एक ही दिन काम मिला कि और दिन भी मिल गया, उसने कहा नहीं 2 दिन मिला था, तो आप ये वाले अनएम्प्लॉयड भी नहीं हो। फिर क्या आप एक साल 30 दिन के अंदर काम मिला, क्योंकि कहा 10 दिन मिल गया, आप ये वाले अनएम्प्लॉयड भी नहीं हो। क्या आपको पूरे साल में काम नहीं मिला, सिर्फ 2 महीने मिला, तो आप अनएम्प्लॉयड हो, क्योंकि आपको मैक्सिमम मेजर ऑफ द ईयर्स यू बिकम अनएम्प्लॉयड। तो इस तरह से सर्वे कलेक्ट किया जाता है और इसके बिहाफ पे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट किया जाता है। सो दिस इज द मेथड एंड द मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ वी कैलकुलेट द अनएम्प्लॉयमेंट। डन। इसके अलावा हमारे पास अब अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस, अनएम्प्लॉयमेंट के इफेक्ट्स and the policies and recommendations for to correct the unemployment. Causes we can talk about randomly. What are the causes of unemployment? You got the class? Poverty is a reason. Population is a major reason. Yeah. Education unemployment can lead to the more unemployment in the economy. Yes. Technical skilled lack. Infrastructure is a major reason. Or कैसे? इन्फ्लेशन होएगा तो जो लेबर है वो कम हो जाएगी, तो हम कैसे लेबर कम हो जाएगी? जैसे एक जगह में जैसे 4 वर्कर काम कर रहे थे। अच्छा, आप इन्फ्लेशन वर्क एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो? हाँ जी। अगर जैसे 4 वर्कर काम कर रहे थे, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई तो वो 2 को रखेगा, क्योंकि वो फिर 2 को नहीं रखेगा। में से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कह सकते हैं। आई वाज थिंकिंग कि लेबर को महंगा हो रहा है तो वो छोड़ के जा रहा है जॉब। हाँ, इट मे बी कमिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड। एनीथिंग एल्स व्हिच इज लीड टू द अनएम्प्लॉयमेंट? Sometimes the government policies can also affect, but otherwise we said that that's why government used to apply the policies to reduce unemployment. But earlier sometimes जितना हम industrialization की तरफ बढ़ रहे हैं, जितना हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की टाइप बढ़ रहे हैं, उतना ज्यादा unemployment generate होगा. We were talking about the drone spraying in the market that is leading to the more unemployment in the economy. पहले 5 workers were working on the same field, now the 1 machinery is working on the same field. So that's why they said that sometimes and somehow it may leads to the more unemployment in the economy. जितना economy development की तरफ जा रही है, उतना unemployment ज्यादा generate हो रहा है. लेकिन सिर्फ employment generate कौन सी होती है development के basis पे? सर्विस सेक्टर. जितना आप टेक्निकल डेवलप हो गए उतना सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट होती है. एग्रीकल्चर सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, क्योंकि इंडस्ट्री भी नई मशीनरीज पे आ जाती है, एग्रीकल्चर भी नई मशीनरीज पे आती है. उनका जगह कौन लेता है? सर्विस सेक्टर. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की जगह कौन लेता है? सर्विस सेक्टर. एंड सर्विस सेक्टर कैन लीड्स टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट. तभी तो अभी हमारी पॉपुलेशन में भी शिफ्ट ऑफ लेबर फोर्स कहां हो रही है? सर्विस सेक्टर की तरफ, क्योंकि हम लेबर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से हटा के इंडस्ट्री में सर्विसेज सेक्टर में डाल रहे हैं. But that can lead to a big threat to the economy as well. Sometimes or somehow, if the economy comes to be end of the export and imports, that can decrease the impact of employment generation to the economies. So that is the one thing. Then after we can say how it impacts to the economy. वो कारण थे. अब unemployment का effect क्या पड़ेगा? चलिए, वो दोनों बहन भाई है ना. It is cause and effect relationship. Poverty leads to unemployment and unemployment leads to poverty. चलो ठीक है. और कुछ? Increase in crime.
That leads to unemployment. Okay, because of unemployment it leads to the crime. Yeah, social evils will increase. What else will affect on the unemployment leads to? Standard of living will increase. और क्या होगा? Come on, from your side, any input should be there in the class. जब लोग ही नहीं काम कर रहे तो आउटपुट में भी तो कम हो जाएगा ना, प्रोडक्शन भी तो कम होएगा, प्रोडक्शन कम होगा, जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ, कुछ और? Come on, you should have more than 7 to 8 points in this effects. Underdevelopment, हाँ वो इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर्ड हो गई तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट भी कर दिया. We can go for something in brief if you want. I'll just give you the crux of the main points only. I'm not gonna go ahead with the okay causes of poverty. We can go for population, increase in prices, slow economic growth, chronic unemployment, rural economy, capital deficiency. That can leads to unemployment. अगर पैसा ही नहीं है तो इन्वेस्ट कैसे करोगे? इन्वेस्ट नहीं करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा. प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है. You have resources but you are not using those resources, so that can leads to unemployment. And unequal distribution of income. आपके पास पैसा नहीं है और सारा पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है and they are not making money out of it. आप वो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा आएगा मार्केट में, but they are not investing, so that can lead to unemployment. So yeah, afterwards we have some programs and policies to डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट. एक मैं आपको इसमें से नहीं बताती हूँ. अनएम्प्लॉयमेंट हम करते हैं come on, yes, effects. सबसे पहला लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. हम सब लोग एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है. अगर हम लोग को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा तो क्या हो रहा है? हमारे रिसोर्स, जैसे नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइज नहीं किया, ऐसे हमारे रिसोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा. तो इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स व्हेन वी आर नॉट एम्प्लॉइंग अ पीपल. पॉवर्टी इंक्रीज, सोशल प्रॉब्लम्स कम्स अप, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. गवर्नमेंट क्या चाहेगी? जो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे वो क्या करेंगे? गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे एंड देयर मे बी अ unstable situations into the political instability. Exploitation of laborers. जब भी unemployment बढ़ेगा, अभी आपको you want to check it out, go and in the morning go to the labor chowk. You want 2 people, 500 people will be there and everybody will ready to come up with you with the less prices. Exploitation होएगा. आपको नहीं नहीं आधा घंटा तो चला गया, 300 की दिहाड़ी नहीं 280 की, हाँ जी ले लो. Because he know if he will not go for it, he will lose the 280 rupees. So he will ready to go. Obviously वही बात है, जिसकी डिमांड सप्लाई बढ़ जाएगी प्राइस कम हो जाएगा. So अगर अनएम्प्लॉयमेंट तभी अगर आती है तो और लेबर का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता है क्योंकि हम उनसे और कम पे काम करवाने के लिए रेडी होना शुरू हो जाते हैं. इफेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इफेक्ट्स. गवर्नमेंट की जो खर्चे हैं वो भी बढ़ जाते हैं. गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए उतनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनानी पड़ती हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकें. सो दीज आर द इफेक्ट्स, द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ द लेटर ऑन स्टेजेस वी हैव टू टेक सम स्टेप्स टुवर्ड्स डिक्रीजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट. डन. हमने कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पॉवर्टी के अंडर भी की थी, तो कुछ पार्ट जो है वो तो वहीं से निकल के चला जाता है क्योंकि एज आई एम टेलिंग यू द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज हैंड टू हैंड. सो सम ऑफ द पार्ट इज टू बी द सेम बट अ फ्यू थिंग्स दैट इज टू बी गो फॉर इट. डू continuation of the policies and programs that will go for. हमारी कुछ सिर्फ 2 लाइन की हम पॉलिसीज करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे. In 1979 we have started. 1979 government started
That is to be 1979 government launch TRISEM. It is training of rural youth for self-employment. ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये पॉलिसी स्टार्ट की गई थी 1979 में. व्हेन द गवर्नमेंट वांट्स, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, बस एक लाइन ये लिखिए, फुल फॉर्म लिखिए, एक इसका ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए. गवर्नमेंट बेसिकली, आपको इसके नाम से पता चल रहा है, रूरल एरिया में यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए किया गया था. टू हेल्प द अनएम्प्लॉयड यूथ बिटवीन द एज ऑफ 18 to 35 years. इसी को यूथ बोलते हैं, इसके बाद यूथ नहीं रहते. 18 to 35 years to acquire skill for self-employment. To acquire skills for self-employment. To acquire skills to the self-employment. इसमें बेसिकली जो प्रायोरिटीज दी गई थी विमेन को और रिजर्व कैटेगरीज को दी गई थी. द प्रायोरिटी वाज गिवन टू द विमेन एंड यूथ बिलोंग टू, प्रायोरिटी वाज गिवन टू विमेन एंड यूथ बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरी. इसका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था इस पॉलिसी का. 79 में किया, उसके बाद 1979-80 कुछ पॉलिसीज हैं जो टाइम टू टाइम विद सीक्वेंस चल रहे हैं, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. इट इज IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये हमने पहले किया हुआ है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके नाम, इसका भी ऑब्जेक्टिव लिखो एक लाइन का, बस ये लिखा, ऑब्जेक्टिव लिख लो. इसका लिखा, इसका ऑब्जेक्टिव लिखो. ये था रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ टू क्रिएट फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया. टू क्रिएट फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इनटू द रूरल एरिया. हाँ, एक था हमारा RUD, that is rural development, that comes into 1982. Rural development, RU stands for rural development, and self-employment training, self-employment training institution. It was joining by Dharmasthala, SATHALA, Dharmasthala and मंजुन अस्थवरा, दो नेम है. ये कौन थे, आई लेट यू नो. मंजुनाथ